धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, Let each and every one of them receive the power of Holy Spirit. ताकि हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करे। Hallelujah. Hallelujah. You touch my people, Lord. तो अपने लोगों को छू ले खुदावन। Touch my people, तो Lord. अपने लोगों को छू ले खुदावन। Let them experience the deliverance power right now. प्रभु इसी वक्त तेरे छुटकारे को अनुभव करें। Build their personal prayer life. प्रभु जी उनका व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन भरने Let them पाए। be filled with a reverential fear for Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लिए उनके अंदर एक भय और डर होने पाए। Hallelujah. Hallelujah. As they read the word of God, प्रभु जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं, Lord, प्रभु हमसे बातचीत कर। let their inner eyes of understanding be enlightened right now. प्रभु उनकी समझ के अंदरूनी आंखें इसी वक्त खुल जाएं। Thank you, Jesus. यीशु तेरा धन्यवाद। I bring each and every youth in this church into thy loving hands. प्रभु जी इस कलीसिया के हर एक नौजवानों को तेरे पवित्र हाथों में लेके आते हैं। Let them receive the anointing of Stephen. प्रभु जी इसी वक्त तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक को Let प्राप्त there करें। be a revival among youths, Lord. प्रभु जी जवानों के बीच में वो बेदारी बन जाएं। Bless each and every young woman and men in this church. प्रभु इस कलीसिया के हर एक नौजवान भाई और बहन को तू प्रभु जी अद्भुत सामर्थ से भर दे। Come and bless all the facets of the ministries of this church. प्रभु इस कलीसिया के हर सेवकाई को तू आशीषित कर। Lord, you continue to minister to us. प्रभु जी इस वक्त तू हमारे बीच में आ, हमारे बीच में तू कार्य कर। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. आमीन आमीन। Hallelujah. 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 Open up your eyes अपने आंखों को खोलिए and look up to me. और मेरे बल देखो। Raise your hands and say, अपने हाथों में उठा के कहो, God is good परमेश्वर भला है all the time. हर वेले। कहिए His grace endures forever. और उसके अनुग्रह हमेशा के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। If everybody raise your hands and say hallelujah. सब लोग अपने हाथ उठा के कहिए हालेलुया। Okay. Thank you, I'm Lord. really blessed to see all your beautiful faces. आपके खूबसूरत चेहरे को देख के हम बहुत खुश हैं। How many of you all are happy this morning? आज सुबह के वक्त सब लोग कितने लोग खुश हैं? How many of you all are happy that we are here with you? कितने लोग इस बात से खुश हैं कि आज हम लोग आपके बीच में हैं? आमीन। I'm so much blessed. और बहुत अच्छी बात। I praise God for Pastor Peter, Mrs. Peter, children and all the elders of this church. और पास्टर पीटर और उनकी मिसेस, उनके बच्चे और इस कलीसिया के जितने भी लोग हैं, सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। Hallelujah. Hallelujah. I'm really blessed today to see many new faces. और आज मैं कुछ नए चेहरों को देख रही हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो। Okay, I would like to put a question to you this morning. इस सुबह के वक्त मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न रखना चाहती हूँ। Did everyone read Bible today? क्या आज सब लोगों ने बाइबल पढ़ी है? कितने लोग आज बाइबल पढ़े हैं? Okay. So it is the responsibility of a Christian to take the Bible and read the word of God. हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि रोज बाइबल ਨੂੰ लेके बाइबल ਨੂੰ पढ़े। Hallelujah. Hallelujah. So if you have got the Bible in your hand, take the Bible and show to me. When we preach the word of God, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ you ਕਰਦੇ have to ਹਾਂ open the Bible and read it. और ਤੁਹਾਨੂੰ बाइबल खोलकर पढ़ना जरूरी है। From next week, we are going to bring a small practice. और From next week, we are going to bring a small practice. और अगले हफ्तों तो लेके आज जो है एक छोटे से काम करेंगे। Before you enter the church, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆने ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ we would check whether you have Bible in your hand. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
हाँ जी, Will you send your children to school without school books? तुसी अपने बच्चे को बिना जो है ऐसे खाली हाथ स्कूल भेजोगे? Tell me. बताओ। You ask them to take the books along with them to the school because when the teacher teaches, the children should understand the portion what the teacher is teaching. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥ ਭੇਜੋਗੇ ताकि वो बच्चे ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो किताब खोल कर देखें और वो भी पढ़ाई करें। Can you understand हाँ जी, what I'm सही बोला कि talking? नहीं? So how much importance you give for your children to gain worldly wisdom? और दुनियादारी ज्ञान प्राप्त करने लिए जिन्ना महत्व और जोर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। So how much our dear heavenly Father और साਡਾ will जो have the earnest desire for you and I to gain the spiritual wisdom through the word of God. और साਡਾ स्वर्गीय पिता ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਜਰੀਏ स्वर्गीय ਗਿਆਨ और बुद्धि ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। Can you understand what I'm talking to you? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? So from next week, each of you all should carry the Bible to the church. ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। If you do not carry the Bible to the church, अगर ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ we are planning to give a small punishment for you all. तो हमें एक छोटा सा जो है ना सजा देवांगे। Small punishment. छोटी सी एक सजा देवांगे। Shall I tell what the punishment is? और कि मैं दसा कि समझ जो है दोनों सजा देवांगे। Okay. I know that each and every one of you will have one mobile in your hand. और मैंने पता है तोड़े कोल मोबाइल आएगा। I will pluck the mobile out. और तोड़ा मोबाइल ले लांगे। No Bible. बाइबल नहीं है। No mobile. आपके हाथ में मोबाइल भी नहीं होना। Deal. ठीक है जी? सहमत है? हाँ जी? सारे सहमत हैं? Peter ji is very happy because from next week we are going to have hundreds of mobile in the church. People say that they won't bring the mobile also. सौदा पक्की है? बाइबल नहीं लाएंगे तो मोबाइल भी नहीं। ये नहीं तुझे I tell कुछ मोबाइल रख के our आओगे। people will be without Bible but not without mobile. मैंने पता है बगैर बाइबल में रहेंगे पर मोबाइल के बगैर कोई नहीं रहता। हाँ जी। So when you carry the word of God in your hand, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ when you ਚੱਲੋਗੇ have the word of God in your heart, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ the ways of your life, the walks of your life will be prospered. ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। Hallelujah. आमीन। You will have clear mind. आपका समझ बिल्कुल साफ You will होगा। have clean spirit. आपका हृदय पवित्र होगा You will have truthful words. और आपके मुंह के शब्द ईमानदार You will होंगे। be blessed आप आशीषित होंगे and your family will be blessed. और ਤੁਹਾਡਾ परिवार भी बरकत पाएगा। So I would like to tell you one prophetic word today. आज मैं एक भविष्यवाणी का वचन आप लोगों के सामने मैं कहना चाहता The हूँ। word which stirred my heart. जो वचन मेरे दिल को उत्साहित किया है, प्रभावित किया है, The word which strengthened my heart today. वह वचन जो मेनू बल और ताकत देती है It is going to be really prophetic in your life. और ये सचमुच में आपके जीवन में भविष्यवाणी का वचन होगा। If you take this word into your heart this afternoon, इस वक्त अगर आप इस वचन को अपने दिल में ले लेंगे, I tell you this word will work in your life. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। Take the Bible in your hand. अपने हाथ में बाइबल ले लीजिए Turn with me to the book of Job, और अय्यूब का किताब निकाल लीजिए 42 and 2. और उसका 42 अध्याय Everybody open उसका up the दूसरा Bible. वचन। Your सभी eyes लोग should see the word. सभी लोग अपने बाइबल निकालिए। बाइबल में अय्यूब की किताब अय्यूब उसका 42 बाब दे दूसरा आयत है। सारे निकाल लो और ऐसे पढ़ांगे। Together loudly we are all going to read the word. ऐसे सारे मिलके बड़े जोर नाल इस वचन को पढ़ांगे। अय्यूब की किताब उसके 22 बाब दे दूसरा आयत है। How many of you are happy about it? कितने लोग बहुत खुश हैं? Everyone together with one church, और एक सब लोग एकजुट होकर कलीसिया के रूप में as one church with one spirit, with one mind, we are all going to proclaim this word today. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ एकजुट होकर एक मन
मन नाल और एक स्वर नाल असी इस वचन में पढ़ांगे। Hallelujah. Hallelujah. Shall we all go? आइए असी सारे पढ़ांगे। सभी ने खोल लिया? 42:2. अय्यूब का किताब 42 अध्याय उसका दूसरा वचन। अय्यूब 42 बाब दे दूजा आयत असी सारे मिलके एक मन होके एक स्वर विच असी पढ़ांगे। I know that मैं you do जानता हूँ all कि things. तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We worship a faithful God. हम एक ईमानदार और वफादार परमेश्वर की आराधना करते हैं। His name is Almighty. उसका नाम सर्वशक्तिमान This परमेश्वर है। morning the Spirit of God is saying, और वो जो है इस तरह कहता है, I can do all things for you. मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। The love of Jesus Christ is upon us. प्रभु यीशु का प्यार हमारे ऊपर है। He says that he can do all things for us. वो कहता है कि तोड़े लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। No plans of him will be thwarted. उसकी कोई भी युक्ति या योजना रुक नहीं सकती। No plans and purposes of the living Lord Jesus Christ can be destroyed. हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह की कोई भी युक्ति योजना कभी रुक नहीं सकती, रोक नहीं सकते कोई भी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Keep your hands like this. आप अपना हाथ इस तरह जोड़िए, With open eyes, अपने आंखों को खोल के रखिए, look up to Lord Jesus Christ यीशु की ओर देखिए and tell him, और यीशु को कहिए, Lord Jesus, प्रभु यीशु I love you. मैं तोड़े नाल प्यार करदा हां। I know that मैं जानदा हां you have a तू यस greater plans in my life. तू मेरे लिए बहुत बड़ी योजना बना रखी है। I submit my heart and mind into thy loving hands. प्रभु तेरे प्यार भरे हाथों में मैं अपने दिल और दिमाग को दे देंदा हां। कहो तो सारे कहो, Let your will and plan be done in my life. तेरी योजना, तेरी जो युक्ति है मेरी जिंदगी च पूरी हो जाए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Abraham was 99 years old. इब्राहिम 99 साल दा सी Sarah was 75 years old. और सारा 85 साल दी सी। They were very old couple. वो बहुत ही बुजुर्ग लोग थे। Sarah's uterus was dead. जो सारा की जो गर्भ की थैली है वो बिल्कुल कमजोर खत्म हो चुका था। Abraham was very old and he had no strength. और इब्राहिम इतना बुजुर्ग हो चुका था कि उसके शरीर में ताकत नहीं The है। scenario of the old couple was like that. और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका शारीरिक हालत ऐसा ही होता Now है। listen to me. आप ध्यान से मेरी बात At that सुनिए। time, Lord sent 3 angels to visit Abraham. उस वक्त परमेश्वर 3 स्वर्गदूतों को इब्राहिम के पास भेजा मुलाकात करने के लिए इब्राहिम And they से। came and said to Abraham, और उन लोग इब्राहिम से मुलाकात करके कहने लगे, can we all read Genesis 18 and 14? उत्पत्ति उसका 18 अध्याय। Turn with me to the book of Genesis 18 and 14. आप मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 14 वचन। Those उत्पत्ति किताब 18 बाब में 14 3 angels said to Abraham, और वो 3 फरिश्ते इब्राहिम से कहने लगे, you will have a child. तुम्हारा एक बेटा होगा। I am doing a miracle in your life. मैं तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत काम Now look करता up to हूँ। the person who's sitting next to you and tell them, अपने बगल वाले से कहिए, उनको देख के, Lord is doing a miracle in your life. प्रभु तुम्हारे लिए एक अद्भुत काम कर रहा है। Lord is doing a miracle in your life. प्रभु तुम्हारी जिंदगी च अजूबे काम कर Lord रहा is है। doing a miracle in your life. तुम्हारी जिंदगी च प्रभु एक अजूबे काम कर रहा है। अपने बगल वाले को देख के कहो, Tell Lord is doing a miracle in your life. बगल वाले देख के कहो, तुम्हारी जिंदगी च प्रभु अजूबे He काम is a कर रहा है। wonder working God. वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। Abraham said, I am old. इब्राहिम ने आख्या, मैं तो बुजुर्ग हो गया। Sarah was laughing, my uterus is dead. और सारा जो इब्राहिम की पत्नी है वो अंदर ही अंदर हंसने लगी कि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी बच्चादानी जो है सब कुछ कमजोर हो चुका है। How can I ever bear a
child? मैं कैसे माँ बन सकती है, एक बच्चे में जन्म कैसे दे सकती है? Hallelujah. Hallelujah. At that time, उस वेले God spoke to Abraham and said, परमेश्वर इब्राहिम ने वेख के कहता है, verse 14 says, और इस तरह कहता है, is anything too hard for the Lord? क्या परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव है? I will return to you at the appointed time next year and Sarah will have a son. मैं नियुक्त समय अगले साल तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारी पत्नी सारा के हाथ में एक बच्चा होगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Today, आमेन। today the Spirit of God is saying to us, आज परमेश्वर दा आत्मा साडे नाल is कहता है, anything too hard for the Lord? क्या परमेश्वर लिए कोई भी काम औखा है? Note today's date. आज का दिन तुसी नोट कर लो। It is March 7th, 2021. आज का जो मार्च का महीना है 7 तारीख है 2021 साल। By the time next year, March 7th, 2022, अगले साल मार्च 7 तारीख 2022। I tell you, the pain that you carry today will become a joy in your life. आज मैं तो आख दिया कि इस वेले जो दर्द और तकलीफ तुम्हारी जिंदगी विच है वो तुम्हारी जिंदगी तो दूर हो जाएगी। Hallelujah. Amen. Today, whatever prayer request you are carrying in your soul, आज अपने मन विच जो भी तुसी प्रभु तो मांगते हो, it can be about the future of your children. हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे का भविष्य, It can be blessing your children with a suitable life हो partner. सकता है कि अपने बच्चे लिए एक सही जीवन साथी तुसी ढूंढ रहे हो, It can be about your job. हो सकता है कि तुम्हारी नौकरी के बारे में, Anything related to your career or anything related to building your house. हो सकता है कि तुम्हारे आगे का जो कैरियर है, काम काज है या घर है, परिवार है, Anything related to healings and success. कोई भी चीज तुम्हारी चंगाई और सफलता के नाल जुड़ी है। Just carry one prayer request unto God. एक प्रार्थना ना निवेदन प्रभु के चरणों में लेके आओ। Is anything too hard for the Lord? क्या परमेश्वर लिए कोई काम औखा है? Take the toughest part of your life to the cross. आप इस वक्त प्रभु के चरणों में, आपके जीवन में सबसे ज्यादा जो मुश्किल की चीज है, जो आप कहते हैं कि ये संभव नहीं है, इस वक्त आप प्रभु के चरणों में लेके आइए। Today you take the toughest part of your life to the throne. आज आप मसीह के उस सलीब के सामने अपने जीवन के वो सबसे कठिन औखा जो कहते हैं उसको लेके आइए। The grace that was exhibited in the Calvary and throne is filling you right now. और वो अनुग्रह जो वो कलवरी क्रूस के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध है, वो आज आपके जीवन में प्रभु दे रहा है। I tell you prophetically, my dear people, नबूवती रूप से मैं आप लोगों से कह रहा हूं, in the next 12 months time, ये 12 महीने के भीतर, note this day, आज का दिन आप बिल्कुल नोट करके रखिए। particular struggle, आपके जीवन में वो संघर्ष, वो मुश्किल, वो कठिनाई, the particular captivity in which you are captured, और वो चीज जो सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रही है, will turn into joy. वो आपके जीवन में बदल जाएगा और आप आनंद से भर जाएंगे। Hallelujah. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। This was the prophetic utterance that I had this morning. आज ये नबूवती जो चीज इस सुबह के वक्त मेरी जुबान, And this time, the coming year, अगले साल आज का ही समय all the captives will be made free. आपके जीवन में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीजें गायब हो जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। You will be released for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के द्वारा आप छुटकारा पाएंगे। In the areas where you were put to shame, और वो इलाका, वो जगह जहां पे आप शर्मिंदे हुए हैं, Spirit of God says that He's going to come and crown you with glory. और परमेश्वर का आत्मा तुहानू कहता है कि तुहाडे सिर विच प्रभु अपना ताज रखेगा, तुहाडी इज्जत बढ़ाएगा। आमीन, Hallelujah. हालेलुया। विश्वास करके सारे प्रभु की महिमा करो। Praise God. हालेलुया, प्रभु की महिमा करो। With an open heart, प्रभु का with धन्यवाद an करो, open mind, पूरे दिल नाल, मन नाल। open up your heart and praise God for some time. और थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु की तारीफ करो, सारे कलीसिया प्रभु की महिमा करो। Hallelujah. Thank you, हालेलुया, Jesus. हालेलुया। Thank you, Holy Spirit of God. इसी वेले परमेश्वर Father. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Holy Spirit of God.
आत्मा। You make a note of this day. आज इस बात को आप अपने मन में You रखिए make a note of the shameful ways and paths that you are crossing through. और वो शर्मिंदगी जिसका सामना आप कर रहे हैं, You will testify soon. अगले साल आप आकी गवाही This is देंगे। the prophetic word for the youths who are sitting there. और ये प्रभु का वचन उन जवानों के लिए भी है जो यहाँ पे बैठे हैं, The youths who are listening to this voice. और इन वचनों को सुनने वाले नौजवान लोगों I tell you, my beloved sons, और मेरे नौजवान बच्चों, मैं तुमको कहता हूँ, you are special in the sight of God. परमेश्वर की नजर में आप खास हैं। God is adorning you, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर नजर रखा है and your future will be blessed. और तुम्हारा भविष्य आशीषित होगा। I wish all the youths in this church to raise your right मैं hand. चाहता हूँ कि इस कलीसिया के सभी नौजवान बच्चे अपने हाथों को उठाएं। Only the youths. सारे नौजवान, Only the youths. केवल नौजवान लोग, केवल नौजवान लोग अपने हाथ Only उठाएं। the youths and the young people. केवल नौजवान बच्चे अपने हाथ उठाइए। Hallelujah. The boys and the girls. केवल नौजवान बच्चे, You चाहे are a बेटा हो blessing बेटी to हो, this church. इस कलीसिया के लिए आप खास लोग हैं। You are a blessed portion of this church. इस कलीसिया के आप आशीषित लोग The हैं। anointing of Stephen and Deborah will be released in you. और देबोरा और स्तिफनुस का अभिषेक तुम्हारे ऊपर आएगा। You are very special in the sight of God. परमेश्वर के नजर में आप विशेष हैं, खास हैं। And I say that you will be raised as an army like the army of God in heaven. और परमेश्वर की स्वर्गीय सेना के समान आपको प्रभु उठाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Tears that we have shed in the feet of God वो आंसुएं, bring वो आंसू, greater miracles into your life. वो आंसुएं, हर एक बूंद जो आप प्रभु की हुजूरी में आपने जो बहाया है, वो सब आनंद में बदल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। God is always God. और परमेश्वर Again together we are going to read the word Job 42 and 2. दोबारा उस वचन को हम पढ़ेंगे, अय्यूब 42 और उसका 2। Again open up the Bible सब लोग बाइबल को खोलिए, and read with me. मेरे साथ पढ़िए। Job 42:2 says, अय्यूब उसका 42 और दूसरा वचन कहता है, I know that you can do all things. मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है No plan of yours can be thwarted. और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। Hallelujah. हालेलुया। As God did a miracle to Abraham and Sarah, और जिस तरह परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा के जीवन में अद्भुत काम किया था, the miracle working power of God is amidst us. और वो परमेश्वर के अद्भुत कार्य करने की शक्ति आज हमारे बीच में है। And secondly, my beloved people, मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, God says परमेश्वर कहता है He has a plan for you. आपके लिए वो एक योजना बना रखा है। Come to the next person and tell, अपने बगल वालों को देख के कहिए, God has got a plan for you. आपके लिए प्रभु एक योजना बना God रखा has है। got a plan for बगल you. वाले से कहिए, प्रभु आपके लिए एक योजना बना रखा है His will and His purpose will come into pass. और परमेश्वर की इच्छा और योजना आपके जीवन में पूरी होगी। If I call a mother, अगर मैं if I call sister up and I ask her, what is your plan for your children? अगर इस बहन को मैं पूछूं आपके बच्चे के लिए आपके अंदर क्या योजना है, She will at least talk for next 5 minutes. वो कम से कम अगले 5 मिनट कुछ ना कुछ बोलेगी, Because she's got so much dreams and plans for her children. क्योंकि अपने बच्चे लिए बहुत ज्यादा ख्वाब है उसके अंदर। Likewise, और इसी तरह you and I are children of God. हम लोग उस परमेश्वर के बच्चे हैं। Our Heavenly Father हमारा स्वर्गीय पिता has greater plans. हमारे लिए बड़ी योजना बना रखा Just है। raise your right हाथ hand. उठा के प्रभु का आभार करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Just raise your right hand and say, अपने सच्चे हाथ उठा के, My Heavenly Father मेरा स्वर्गीय पिता has plans for me. मेरे लिए योजना बना रखा He है has predestined me. और आज मेरे लिए पूरा करेगा। He has chosen me. उसने मैंने चुन लिया है, He has a will and purpose for me. मेरे लिए वो एक योजना बना रखा है Everything will come into pass in my life. और मेरे जीवन में अपनी योजना में वो जरूर पूरा करेगा। कहिए सारे को हालेलुया। When after all, human father and mother can earn and pay and bring up their children, why not a heavenly Father, Almighty Joshua, Adonai can do greater things for us and through us. एक साधारण माँ बाप अपने बच्चों के लिए
दुख और तकलीफ और संघर्ष उठा करके उन बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कार्य करते हैं, योजना बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारा जो स्वर्गीय पिता उससे बढ़कर कितना अधिक हमारे लिए क्यों नहीं करेगा। आमीन। We are all children of Heavenly Father. हम सब स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं। Our Father is in heaven. साडा प्यो स्वर्ग विच है। Hallelujah. हालेलुया। He is an amazing God. वो बहुत ही चंगा वधिया परमेश्वर है। He is a marvelous God. वो बहुत ही बड़ा अद्भुत परमेश्वर He है। is a wonder-working God. वो अजूबे काम करने वाला परमेश्वर He है। is all-powerful God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर He है। is the Holy One of Israel. वो इज़राइल का पवित्र परमेश्वर He है। is the Almighty वो God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर He है। has all power both in heavens and earth. आकाश और धरती का सारा अधिकार उसके हाथ विच है। Hallelujah. Hallelujah. And we are His children. ਅਸੀਂ उस परमेश्वर के बच्चे हैं। The plans, और योजना the purposes, और मकसद the will और इच्छा that He had predestined for me वो पहले से ही साडे लिए बना रखा है take place in my life. और साडे जीवन विच वो पूरा होके I रहेगा। will never lose any blessings of God that God has purposed for me. परमेश्वर मेरे लिए जितनी भी बरकत की योजना बना रखा है उस दे विच मैं एक भी बरकत नो मैं नहीं खोवांगा, मैं नहीं खोवांगा। Hallelujah. Hallelujah. I proclaim it and I declare it. मैं अपने मुंह तो अंगीकार कीजिए। Hallelujah. परमेश्वर मेरे लिए All जो the योजना evil रखा है forces वो कोई भी आशीष को मैं नहीं be खोऊंगा। removed from my path. मेरे जीवन में वो मार्ग को तैयार करेगा Let all the human forces be put into ashes. और मेरे विरुद्ध में उठने वाले हर एक ताकतों को प्रभु दूर करेगा। For the path of the righteousness is royal path. और परमेश्वर के धर्मी लोगों का जो मार्ग है वो राजमार्ग है। Hallelujah. Hallelujah. So how many of you believe that? किसी लोग विश्वास करते हैं इन वचनों पर। Go to the feet of God every day रोज प्रभु यीशु के चरणों में जाइए with an open heart and mind. और खुले हृदय और खुले मन के साथ Kneel down and pray unto God. प्रभु के चरणों में घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए। Tell Him, मैं आपसे कहती हूँ let your plan and purposes come into my life. आप प्रभु से कहिए, प्रभु तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो खुदावन। Let your plans and purposes come into pass. प्रभु तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो प्रभु। The Spirit of God is here. परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। The Spirit of God is going to fill each and every one of you. परमेश्वर का आत्मा हर एक में भरने जा रहा है Plan and purpose of God will come and fill you. और तुम्हारे जिंदगी में प्रभु की योजना पूरी होगी। Hallelujah. 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 Nothing can be thwarted. परमेश्वर योजना रुक नहीं सकती। Hallelujah. Hallelujah. How does the plan and purpose of God work in our life? और सारी जिंदगी में प्रभु की योजना पूरी होके रहेगी। He stretches out His right hand upon us. प्रभु अपना सच्चा हाथ साडे बदलो वो दिखाएगा। Now look at me. आज मेरे बदलो देखो Right hand of the Father. परमेश्वर का सच्चा हाथ, The right hand of the Father. परमेश्वर का सच्चा हाथ, The right hand of the Father परमेश्वर का सच्चा हाथ is mighty upon us. वो साडे लिए सामर्थी है। The right hand of the Father परमेश्वर का अपने पिता का दाहिना हाथ delivered the Israelites from the power of Egypt. इस्राएली लोगों को उनके सारे बंधनों से छुटकारा दिया है। Likewise, the right hand of the Father is upon us. उसी तरह पिता का दाहिना हाथ हमारे ऊपर है। We read in the book of Isaiah 14:27. और यशायाह उसका 14 अध्याय के 27 वचन में हम देखते हैं। Turn with me to the book of Isaiah 14:27. यशायाह 14 के 27 में लिखा है, For the Lord Almighty has purposed और क्योंकि सेनाओं के यहोवा पर भरा हुआ है toward him. और उसकी युक्ति की है His hand is stretched out, और उसका हाथ हमारे ऊपर बढ़ाया गया है and who can turn it back? और उसको रोक सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Outstretched arm of the Lord परमेश्वर का बढ़ाया हुआ हाथ is upon us. हमारे ऊपर है। No human hands can stop the plan that God has given us. दुनिया की कोई भी ताकत उस कार्य को जो प्रभु हमारे लिए कर रखा है उसको रोक नहीं सकता। No human understanding can stand against the will and plan of God to be accomplished in our life. हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना और इच्छा पूरी होने के लिए दुनिया की कोई बुद्धि और समझ कार्य नहीं कर सकती और रोक नहीं सकती। Instead, the outstretched arm of the Father God is upon us. और हमारा स्वर्गीय पिता का बढ़ाया हुआ दाहिना हाथ हमारे ऊपर है। Hallelujah.
हालेलुया। How many of you all say amen? कितने लोग कहते हैं? How many of you all say amen? कितने लोग कहते हैं? Today God is promising us 3 blessings. आज प्रभु 3 तरह की बरकत हमें देता है। By this time next year, अगले साल इसी समय your captivity will be released. आपका बंधन टूट जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Pain that you are carrying in your life today आज अपने जीवन में जो दुख आप लेकर चल रहे हैं will become joy. वो दुख आनंद में बदल जाएगा। Plans and purposes of the living God will come into pass in your life. और जीवित परमेश्वर की योजना और इच्छा जो आपके जीवन के लिए है वो पूरे होके रहेगी। It will not be accomplished by your own strength, ये आपकी खुद की सामर्थ के द्वारा पूरा नहीं होगा, but it will be accomplished by the outstretched arm of the Father. पर ये पिता के बढ़ाए हुए सामर्थी हाथ के द्वारा होगा। Hallelujah. हालेलुया। Right hand of the Father is mighty upon us. और पिता का दाहिना हाथ हमारे ऊपर सामर्थ्य रूप से बड़ा है। Let us all close our eyes. आइए सारे अपने आंखों में बंद करेंगे Commit our life to the love of Lord Jesus Christ. और प्रभु के प्यार की ओर देखें। Hallelujah. हालेलुया। Open up your mouth अपने मुंह खोलिए, and praise God for some time. मुंह खोल के प्रभु का धन्यवाद करो। Just praise Him. थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद करो, अपने मुंह खोल के Praise Him. सारे मिलकर प्रभु का धन्यवाद करिए। Praise Him. प्रभु का धन्यवाद कीजिए, प्रभु की तारीफ कीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए। God, we bless you. पिता तेरा धन्यवाद कर रहे हैं, Praise you. तेरा भी तारीफ करते हैं। Praise you from the bottom of our heart. प्रभु तेरी कृपा साने ऊपर है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरे हाथ साने ऊपर है, तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरी कृपा से मेरे छुड़ाए प्रभु, मेरे जीवन की अपनी योजना पूरी कर। प्रभु मेरे अपनी शांति दे। Let not any human understanding overtake them. प्रभु जी कोई भी दुनिया की ताकत काम न कर सकन। You teach them the word of God. प्रभु अपने वचन के जरिए काम कर। Let them believe in the prophetic word of God. प्रभु तेरे वचन में विश्वास कर सकन। Empower my people. हर एक को अपने सामर्थ पर पा दे। Empower my people. प्रभु अपने लोगों को अपने सामर्थ पर पा I दे। teach in every one of them. हर एक को खुदावन Be blessed according to Job 42:2. प्रभु जी इस वेले तेरे नाम को बरकत पाए। Bless my church, Lord. प्रभु अपनी कलीसिया को बरकत दे। Let your name be magnified and glorified. प्रभु तेरी महिमा इन आदि जिले होने पाए। Let there be multiplication. प्रभु यहाँ पे बढ़ावती होने पाए। Father God, हे पिता you see that in near future, प्रभु जी तेरे बच्चे की जिंदगी में तेरे वचन पूरा हो जाए। we will have multi-services in this church. प्रभु जी इस कलीसिया में बहुत सारे आराधना होने पाए। Hundreds of people are going to flow into this church. हजारों लोग प्रभु इस कलीसिया में छाए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। We are going to conduct a special service for the youths. प्रभु जी यहाँ पे नौजवान बच्चों के लिए विशेष आराधना होने पाए। Hallelujah. Hallelujah. A Bible school will be established soon. प्रभु यहाँ पे बाइबल स्कूल स्थापित होने पाए। Thank you for listening to our prayer. हमारे इस प्रार्थना को सुनने के लिए In धन्यवाद। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन। Hallelujah. हालेलुया।